Hello everyone. So let us start lecture number 2, and today's topic is 2.2, that is electrostatic potential. You all are welcome to Global Career Academy. So as per our tradition, we are going to start with class 11 fundamentals, and then after we move on to today's topic, right? So what we know is F equals to ma, right? Okay. Another thing that we know is if I want to calculate the work done, then it is F force into displacement. Currently we are concerned about the magnitudes only, तो मैंने कुछ वेक्टर में नहीं दिखाया है. Okay. So now what happens if I want to lift an object which is of 10 kg mass. Okay, इसका 10 kg mass है, and if I want to lift it up to some height, let us say h, मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है. Okay, so there must be some force required and there must be some work done that can be calculated. But what happens if the mass is of 100 kg? So obviously you can understand that 100 kg का मास है, तो उसके लिए फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, राइट? फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, राइट? एंड इफ द फोर्स इज मोर, देन you can understand that work done is also more. So we can say that work done is directly proportional to the mass of the object, right? Mass of the object से वो directly proportional है. So if I want to make this thing independent, okay, then what I should do? Then I can do it like this. W is equals to m a into d है. अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूँ, then it will be like work done per unit mass per kg, right? Work done per kg. तो इस चीज़ का, इस फंडामेंटल का हम आज यूज़ करने वाले हैं. So let us back to our today's lecture. It is electrostatic potential, and if you remember our previous lecture, then in previous lecture we discussed that we were having a test charge which was q. Okay, now we also know that force on this test charge can be expressed as F is equals to q into E, right? So it means that the force is directly proportional to the amount of q. q की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर फोर्स लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली है, जस्ट लाइक दिस. ओके, इट इज जस्ट लाइक दिस. ओके, देन ऑब्वियसली द वर्क डन which we are going to calculate, it is also directly proportional to the value of q, right? Okay, so if I want to make this thing independent, okay, then what I should do? I have to divide the work done by q, and that is how I am going to calculate work done per unit charge. It will be known as a per unit charge. So over here it is written, work done per unit test charge is characteristic of the electric field. If I want to find out the characteristic of the electric field, then I have to make it independent of the charge. Okay, so it will give me the characteristic of electric field associated with the charge configuration. Okay, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि that characteristic is known as a electrostatic potential. It is known as a electrostatic potential and its symbol is V. Yes, ये वही सिंबल है V जो आप 9th में या 10th में यूज़ करते थे वोल्टेज दिखाने के लिए. सो दैट पोटेंशियल इज V. ओके, तो यहाँ पे आई कैन से दैट V कैन बी गिवन एज W by Q, right? V can be given as W by Q. Now if I want to find out the work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P, so you can understand that कि यहाँ पे एक point है R, दूसरा point है वो P है, and I want to bring a 1 coulomb of charge from R to P, then that can be written as, यहाँ पे what is the potential energy at point P, so that is UP, minus what is the potential energy at R, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, and then after I will divide it by Q.
तो ये तो पहले भी हम देख चुके हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। वर्क डन को हमने क्यू से डिवाइड कर दिया है एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर वी, राइट। और आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, इट इज वीपी माइनस VR, VP minus VR. So what is VP and VR? VP and VR are the electric potential at P and R respectively. So we have understood a new term that is known as the electrostatic potential and its symbol is V. Now next is work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point. क्या है ये? We want to calculate, it is the work done, okay, by the external force in bringing a unit positive charge. इसकी वैल्यू क्या है? It is +1 coulomb, okay. I will bringing it from infinity to a certain point, let us say it is P, so that will be known as electrostatic potential at that point. So you have to understand that electrostatic potential हर एक point पे अलग अलग होता है, it varies with the distance. Now next is there are some remarks जो हम पहले की थियरी में कर चुके, आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा रिपीट जैसा है, सो जल्दी से देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज, ये सब रिमार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए है. तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी विल कंसिडर द क्यू विच इज इन्फिटेसिमली स्मॉल, मतलब कि उसकी वैल्यू है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल लेनी है. सो यू कैन से दैट आई टेक इट एज डेल्टा क्यू, स्मॉल डेल्टा क्यू है ये, सो इट शोज इट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट द वर्क डन विल ऑल्सो बी स्मॉल. And I can find out I can find out delta W by delta Q, that will give me the value of the V, right? Second point is, external force is always opposite in direction and same in magnitude with the electrostatic force. तो ये भी हम देख चुके हैं हमारे previous lecture में. And third is, yes, it is path independent, मतलब कि आप infinity से कोई भी पॉइंट P पे अगर चार्ज को लेना चाहते हो तो देर आर सो मैनी वेज, यू कैन चूज एनी वेज. ओनली द थिंग मैटर इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, राइट? ओके, सो दीज वेर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू थियरी, दैट इज 2.3 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो in this case we are going to consider a source charge Q. ये है हमारा source charge Q. Let us be more specific that it is a positive charge and this charge is located at origin O. Now I want to bring a charge Q which is located at infinity. Infinity पे एक charge है, I want to bring it to a point P. So let us say here is the point P. I want to bring a positive charge Q, okay, to a point P. पहले कहाँ पे है वो? Infinity पे है. So to do this I should know the distance between the origin and the P, and that distance is equals to, यहाँ पे हम उसको along vector दिखा सकते हैं. So it is वेक्टर R. ये O2P है, राइट? दिस इज लाइक O2P. ओके, सो I what I want to do, what is my aim? I want to calculate the potential of the charge Q at point P. मुझे यहाँ कितना पोटेंशियल है वो जानना है, राइट? ओके, so what I should do now? See, first of all we are going to calculate the potential at some intermediate point. okay, ये point था infinity वाला, ये जो point है वो P है. I am taking one intermediate point. okay, so ये हो गया intermediate point and let us say that point is P dash. okay, now if I want to calculate the force, at point P dash, तो यहाँ पे लिखा है देखो, at some intermediate point P dash on the path
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज। तो हमें मालूम है कि अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्स तो कूलम्स फोर्स के हिसाब से इट विल बी Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर एंड देन आफ्टर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए O से P डैश का डिस्टेंस। ओके, सो आई विल टेक दिस। ओके, O से P डैश का डिस्टेंस है वो मान लो R डैश है, R डैश है। सो व्हाट आई शुड राइट नाउ, तो दैट कैन बी गिवन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो लेट अस से सपोज इट इज F। ओके, तो यहाँ पे सॉरी इट वॉज Q2 हियर। ओके, तो यहाँ पे Q1 जो सोर्स चार्ज है वो, सो लेट अस टेक इट एज कैपिटल Q। Q2 की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट वी आर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Q की वैल्यू है वो 1 कूलम्ब है। ओके, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 1। ओके, सो Q2 की वैल्यू है वो 1 कूलम्ब है अपॉन 4πε0। The distance between the point O and the P dash is R dash. So I am just writing that R dash का यहाँ पे square हो जाएगा and then after it is along the direction of R dash vector, unit vector R dash. So this is unit vector R dash. So यहाँ पे मैंने लिखा है unit vector R dash है, so that is along OP dash. तो ये OP dash की direction में ही R dash vector है वो exist कर रहा है, right? Okay, now what happens if I want to bring it, ये P डैश है उसको थोड़ा सा इन्फिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस पे हमें लेके आना है। तो मान लो कि मुझे P डैश से चार्ज को थोड़ा सा आगे लेके जाना है एंड ये जो डिस्टेंस है लेट अस से इट इज डेल्टा r dash because it is infinitesimal small distance, so I am just taking it as delta r dash. Okay, तो आपके हिसाब से अगर देखें तो इस लोकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट विल बी आर डैश माइनस डेल्टा आर डैश, राइट। ओके, आर डैश माइनस डेल्टा आर डैश, बट आई विल टेक इट एज प्लस। ओके, बिकॉज डेल्टा आर डैश कैन एग्जिस्ट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, आप इस तरफ भी जा सकते हो या फिर इस तरफ भी जा सकते हो। अगर if you are going away from origin O, then delta r dash will be positive, and if you are coming towards the point O, then value of delta r dash will be negative. Okay, तो delta r dash का पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सी साइड जा रहा है, राइट। ओके, तो एज ऑफ नाउ वी विल कीप इट एज पॉजिटिव। ओके, सो अगेन work done against this force from r dash to r dash plus delta r dash। मैंने क्या किया है, I have moved a 1 coulomb charge from point P dash to delta r dash away, right। तो हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फोर्स, सो आई हैव रिटन द सेम फोर्स ओवर हियर एंड मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इट इज डेल्टा आर डैश। सी ओवर हियर इट इज ऑलरेडी रिटन। अनदर थिंग इज यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन हमने क्यों रखा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ये सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे वापस लिखा है एंड the negative sign appears because the delta r dash is less than 0 at that time delta w is positive। जैसे जैसे डेल्टा आर डैश है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आप ओरिजिन के पास जब आ रहे हो एट दैट टाइम द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव साइन हमें भूलना नहीं है। तो सी वी हैव मूव्ड इन्फिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस। Now we can calculate the total work done easily. Now what we are going to do, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है एंड आई एम ब्रिंगिंग इट एट डिस्टेंस स्मॉल r। तो कुछ नहीं करना है, यही इक्वेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है विथ लिमिट्स माइनस प्लस इन्फिनिटी टू r। सो आई विल पुट दैट, यहाँ पे हमने लिख दिया है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर दिया है, माइनस आगे ले लिया है Q 4πε0
आर डैश स्क्वायर डी आर डैश, राइट। और यहाँ पे मेरी लिमिट्स होगी इन्फिनिटी टू आर। ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट में से जो भी कांस्टेंट है उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। सो इट विल बी लाइक माइनस क्यू इज कांस्टेंट, 4πε0 is also constant, and this will be like plus infinity to r 1 upon r dash square dr dash, right? Okay, now इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें, सो इफ़ आई विल कंपेयर दिस, ओके, ये दोनों कंपेयर करें, सो व्हाट आई विल फाइंड इज वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू -2 होगा। एंड उसके हिसाब से हम यहाँ पे रख रहे हैं माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4πε0, एंड ओवर हियर n इक्वल्स टू -2 है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? इट विल बी -2 + 1, यहाँ पे होगा -2 + 1, so it will be x raised to -1 upon -1, so that is -1 upon x, right? Okay, so यहाँ पे मैं रखूँगा minus of 1 upon r, and then after I will put the limits which is infinity to r. Now I'll put the value of these limits. So minus of q 4πε0 minus of 1 upon, यहाँ पे आपको r, सॉरी ये r डैश है, यहाँ पे आपको r डैश की जगह पे r लिखना है। सो इट इज़ r, फिर माइनस साइन आएगा, एंड देन आफ्टर यू पुट द लिमिट फॉर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, राइट। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो वैसे भी ज़ीरो होता है, सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली, राइट। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो q अपॉन 4πε0 इंटू आर। सो ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, बट एज यू नो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज is equals to the electrostatic potential, and electrostatic potential is a function of r. So I will put it like this, it is V of r. So it is discussed over here, same equation हमने लिखा है, V of r is equals to q upon 4πε0 r. आपकी बुक में ये है इक्वेशन नंबर 2.8. Now in this case, as you know, we have taken q as positive charge, so q is greater than 0, and that's how I am getting the electrostatic potential's value, which is also positive. If I will take the value of q as negative, okay, मान लो कि जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, तो मुझे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी नेगेटिव मिलेगी। ओके, सो दैट हैज़ बीन डिस्कस, ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है। वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज नेगेटिव। फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, कौन? Q, और स्मॉल q है वो पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल q है वो पॉजिटिव चार्ज है, एंड इफ आई एम ब्रिंगिंग इट ओवर हियर, तो ऑब्वियस बात है, देखो कि इसमें कोई इफोर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में वैसे भी तो अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? ओके, सो इन दिस केस द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, अभी इसको दूसरी साइड से देखें तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट विल बी पॉजिटिव। एज वी नो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट में है, राइट? तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो दिस विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे सेम पॉइंट लिखा है कि इफ़ वी आर हैविंग अनलाइक चार्जेस देन देयर विल बी अट्रैक्शन, इफ देर इज अट्रैक्शन देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and the displacement are along the same direction, and that's how the work done by the electrostatic force is positive, right? So based on this I have created one table, so you can try it. आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके यू जस्ट थिंक आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरह से करना है, यू कैन टेक इट लाइक दिस के Q का जो वैल्यू है, ओके, the value of capital Q, let us say if it is positive, and small q का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। दूसरा वाला पॉसिबल केस है कि दोनों नेगेटिव है, ओके। तीसरा वाला केस है कि पॉजिटिव कैपिटल Q इज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव,
and the test charge is negative, और इसका उल्टा कर दें हम, that is source charge is negative and the test charge is positive. So we have 4 different cases. नाउ इस वीडियो को आप पोज करके यू जस्ट थिंक दैट कि उसके लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द केस, वेदर इट विल बी अट्रैक्शन और रिपल्सन. ओके, सो पोज इट एंड जस्ट थिंक. Okay, so let us find out. So as you can see over here there is a positive charges. So positive charges है तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है वो होगा कि उनके बीच में रिपल्सन होगा. इफ इट इज अ रिपल्सन then there will be a positive charge. Okay, we know that work done is positive by the external charge. So over here work done by the electrostatic force विल बी नेगेटिव. ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही आएंगे. इफ यू नो दिस देन यू कैन ऑलवेज राइट दिस कॉलम, राइट. अगेन द सेम केस, इफ वी आर हैविंग बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव देन ऑल्सो देर विल बी रिपल्सन. अगर रिपल्सन है देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव. इफ यू कंसिडर बोथ दिस केसेस साइमल्टेनियसली, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही केस में एट्रैक्शन ही होने वाला है, एट्रैक्शन ही होने वाला है. सो इन दिस केस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये आपको आना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन MCQs. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.